Hello friends, today in this video I'll discuss with you primary verb and its uses. There are mainly three form of primary verbs and they are be, do and have. तो mainly three form of primary verbs हैं जो be, do and have हैं आपके. Be and its forms we discuss about that. तो have be has majorly five forms. Is MR the present form of be is MR and a was verb the past form of the be. Now the do, the second primary verb, does and do are the present form of the do and did is the past form of the do. Have similar, has have is the present form, has and have are the present form of have and had is the past form of the have. From here let's discuss all these primary form of the verbs in detail with you. तो यहाँ से आपके साथ इन्हें डिटेल्स में डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the be. So be, as I told you, it is having the mainly five forms is, MR are the present form of the be and was, were are the past form of the be. Be actually shows us the existence of our being, or be simply tells us what a person or thing is. be क्या करता है, हमारा existence बताता है. It tells us not our existence, it tells us all existence of all the person and things, what actually they are and what they were. However, using the be with other models can also express the other mood of, it can show the futurity, future existence of something, and it can also be used with other models such as the can, could, may, might. Depends upon the mood of the speaker. Understand this from some example like I am a teacher. So my being a teacher is being here explained by the am. I am a teacher सोच कि मैं क्या हूँ, तो what actually I am, तो I am a teacher. Am represent me or am simply show my existence here. So am is the form of the be. She is a housewife. Here the she shows her existence. What actually she is a housewife. Is here represent. तो इज यहाँ दिखाता है आप लोगों को कि वो क्या है, तो वो है एक हाउसवाइफ है. दे आर प्लेयर्स. दे आर प्लेयर्स. दे आर प्लेयर्स हो कि वॉट दे आर, कि वो लोग क्या हैं, तो वो प्लेयर्स हैं. यहाँ आप समझ सकते हैं इज, एम, आर तीनों एग्जाम्पल तो ये प्रेजेंट से हैं. सिमिलरली पास्ट एग्जिस्टेंस के लिए भी हम लोग या स्टेटस ऑफ समवन इन पास्ट शो करना है. फॉर दैट पर्पज वी कैन गो ऑल्सो यूजिंग द फॉर्म ऑफ द वी एंड दे आर द वॉज एंड वर. सी फ्रॉम द एग्जाम्पल, उनको एग्जाम्पल से समझिएगा. जैसे द फॉक्स वॉज very clever. The fox was very clever. So here you can understand was.
वॉच शो द एग्जिस्टेंस ऑफ, और फॉक्स बीइंग समथिंग, फॉक्स का कुछ होना दिखाता है कि फॉक्स क्या थी, बहुत ही चालाक थी। तो वॉज हेयर रिप्रेजेंट दैट, तो वॉज आपका फॉर्म ऑफ वर्ब है, बी का एक रूप है, पास्ट में यूज होगा। लाइक दिस, दे वर वुड कटर्स, दे वर वुड कटर, तो वॉट दे वर, तो वुड कटर्स, तो दे यहाँ वर सोच द एग्जिस्टेंस ऑफ, और दे आर बीइंग समथिंग इन पास्ट, उनका पास्ट में कुछ होना दिखाता है वर। तो वर यहाँ पर क्या है, वर आपको उनका एग्जिस्टेंस और उनका स्टेटस इन पास्ट शो करता है। तो इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ बी। बी को एज अ मेन वर्ब्स आप समझ गए होंगे यहाँ से किस तरह से यूज करना है। मेनली एज अ मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब बी को आपको यूज करना है किसी का भी एग्जिस्टेंस शो करने के लिए। बी के अदर यूजेज भी होते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो दैट इज यूज इन continuous tenses of present, past and future, like or whenever the we is using as a helping verb. So remember one thing, in active voice be is generally apply with the present participle form of the verb, present participle form of verb. And what is the present participle? So general present participle, you can simply understand the verb ing forms. It is a different topic. When we would discuss about the non-finite kind of verb, we will talk about the what are the different non-finite kind of the verbs, and in that we would learn what is the participles, and from there you can understand. Here in a simple things you can understand one thing, that is the verb ing forms. Verb ing form, like the going, go plus ing, that becomes going, is a present participle. And similarly, dancing, reading, learning, etc., etc., they all are example of present participles के examples हो जाते हैं। तो जब आप बी का whenever you are using the be as a helping verb, तो बी को बी के फॉर्म में आप जब यूज करेंगे, बी के साथ आपको बी को इसके मेन फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, और इसको इसके फॉर्म्स में जो एम या वॉज वर्ब में भी यूज करेंगे। जब आप एक्टिव में यूज कर रहे हो तो आईएनजी फॉर्म अप्लाई करके करें, जैसे बी गोइंग देखिएगा, जैसे आई एम, आई के साथ एम यूज होना है, आई एम गोइंग, आई एम, देखिए एम यहाँ पर मैंने एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, तो जो मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब मुझे यूज करना है वो गोइंग यूज करना है। आई एम गोइंग टू माई स्कूल। या दे वर, तो वर यूज किया है हमने, तो दे वर हंटिंग। आप फुल स्टॉप समझ सकते हैं। तो दे वर हंटिंग, तो वर जब भी इज एम आर या वॉज वर्ब, ये फॉर्म ऑफ बी है, जब आप इनको यूज करेंगे तो आपको आईएनजी फॉर्म यूज करना है। और बी को आप अदर मॉडल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, मैं इसी में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देखिएगा। जैसे सी में बी, अच्छा हमने बी यूज कर लिया यहाँ पर, तो जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना चाहें आप, एनी फॉर्म ऑफ वर्ब जो वो उस वक्त कर रही है, आपको लग रहा है कि मे के मूड में आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जैसे सी में बी गोइंग, सी में बी गोइंग कानपुर टुनाइट। सी में बी गोइंग कानपुर टुनाइट से आप समझ सकते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए मे मॉडल है, मैंने इसको बी यहाँ यूज किया, और आगे जो मैंने अपना एक्सप्रेशन है वो आईएनजी फॉर्म में यूज किया, सी में बी गोइंग।
आप देख सकते हैं दे विल बी लर्निंग। ठीक, होपिंग दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। तो जहाँ भी आपको बी यूज करना है आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल। और आईएनजी फॉर्म्स यूज करें एक्टिव वॉइस में। नाउ वी वुड टॉक अबाउट द डू। डू डू के बारे में हम बता चुके हैं, ये भी एक प्राइमरी वर्ब है और डू एज अ मेन फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज हो जाती है और एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाती है। हालांकि इसका एज अ मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज बहुत ही कम सेंसेस में होता है। मेनली जो डू का यूज होता है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। प्रेजेंट पे जब आपको यूज करना है, इन प्रेजेंट इट इज यूज एज द डज एंड डू। डज when a subject is singular. Learn, understand this concept as well, singular and plural. And a do when our subject is plural. And one thing that you need to remember, to do always apply with the base form of verb. Base form of verb. And the base form of the verb जो होती है आप उसको जनरल कॉमन बातचीत में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। ठीक है गाइस, अभी ये इसको मैंने प्रेजेंट में बताया। डू डज वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द डू है एंड डिड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द डू है आपका। इसका बहुत सिंपल यूज है कि जब आप डू और डज को यूज करें, स्पेशली इन एक्टिव वॉइस में, और इसका यूज एक्टिव वॉइस में ही होना है। जैसे आई डू नॉट प्ले हॉकी, या एज ए क्वेश्चन में यूज कर सकता हूँ डू यू नो, डू यू नो हिम। देखिए, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना है मुझे, डू यू नो हिम। तो वेरी सिंपल है, देखिएगा जहाँ पर भी इसे मैंने डू यूज किया तो वर्ब का बेस फॉर्म प्ले यूज किया, यहाँ डू यूज किया एज ए क्वेश्चन तो नो यूज किया बेस फॉर्म द वर्ब। सिमिलरली ये प्रेजेंट में है और डू यूज हुआ है क्योंकि आई और यू आर कंसीडर्ड एज द प्लूरल सब्जेक्ट। अब आप नेक्स्ट देखें, जैसे सी नाउ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आई मस्ट अप्लाई द डज। सी डज नॉट टेल lies. That's very simple. Does apply with the tell, that is the base form of the verb, or in general first form of the verb. Next देखिएगा, जैसे राम did not hit me. Sorry, hit me. Very simple, you can understand did use of the first did and hit use of the first form. तो यहाँ से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जहाँ भी आपको डिड यूज करना होगा तो फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। सिमिलरली डू डज यूज करना है तो भी फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इनके साथ आपको बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब अप्लाई करना है और इनका जो यूज होता है वो एक्टिव वॉइस में ही होना है, पैसिव में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग हैव। हैव मैंने फॉर्म ऑफ हैव बता दिए हैं आपको। हैज ऑफ हैव, हैज़ इन प्रेजेंट, और हैव भी आपको प्रेजेंट में यूज करना है। एंड एज अ मैन वर्ब दे शो द पोजेशन। एज अ मैन वर्ब दे शो द पोजेशन। जब उनको एज अ मैन वर्ब यूज किया जाता है तो ये क्या शो करते हैं, पोजेशन। पोजेशन यू नो आर नोइंग दैट ना, श्योरली यू मस्ट बी नोइंग पोजेशन। पोजेशन क्या है सभी को पता ही होगा, अधिकार। यानी आपका चीज़ों पर जो अधिकार है, चीज़ें जब वो आपसे बिलोंग करती हैं तो आप उन्हें हैज़ और हैव के साथ डिस्कस कर सकते हैं।
देखिएगा कैसे डिस्कस करना है। हैज़, और यहाँ ये भी अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, हैज़ इस चीज़ और समझना है कि हैज़ यूज इन सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज होगा। हैज़ यूज विद द सिंगुलर, सॉरी, हैज़ को आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। हैज़ को आपको यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, और हैव को आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। और इन्हें आपको, सॉरी, इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेजेंट में यूज करना है। और अगर पास्ट में यूज करना हो तो आप हैड का यूज करेंगे। और मैंने बता दिया एज अ मेन वर्ब वो आपको पोजेशन शो करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, जैसे ही हैज़, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज अप्लाई हो रहा है। ही हैज़ अ पेंसिल, उसके पास एक पेंसिल है, उसके पास एक पेंसिल है। नेक्स्ट समझ लीजिए आप, यू हैव नो टाइम, तो दैट्स सो सिंपल, आपके पास टाइम नहीं है। तो ये क्लियर, आप हैव को एज अ मेन वर्ब यहाँ यूज किया रहा है। जब आप पास्ट में यूज करेंगे तो द किंग हैड, सॉरी इसको मैं अबाउट कर दे रहा हूँ, ठीक से कर दे रहा हूँ। द किंग हैड 3 daughters, 3 daughters। सो सिंपल, हैड का आप यूज देख सकते हैं। अच्छे से आगे समझ लीजिएगा, इसका यूज जब आपको एज अ हेल्पिंग वर्ब करना है तब आप इतना ध्यान रखेंगे कि एक्टिव वॉइस में, हालांकि इसको तो पैसिव में भी यूज किया जा सकता है, पर लेकिन इसके साथ तब आपको बीन अप्लाई करना होगा, और तब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे आप जनरल कहते हैं, जिसे हम ग्रामेटिकली बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, तो आपको इसे पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज करना है। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि जहाँ पर भी आपको हैज और हैव अप्लाई करना है, हैड अप्लाई करना है, तो आप उसे पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज कर लेंगे। और ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट शो करता है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि अदर मॉडल्स के साथ भी ये कई सारे आपके मूड्स या कई आपके एक्सप्रेशंस को शो कर सकता है, कई तरीके से आपकी जो आपके आइडियाज़ हैं उन्हें प्रेजेंट कर सकता है ये अदर मॉडल्स के साथ। वो भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, देख लीजिएगा। देखो कैसे यूज करना है, जैसे सी, अब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ यूज होना चाहिए प्रेजेंट में। जैसे सी हैज़ डन हर वर्क, देखिए डन यूज हुआ है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसी को जनरल में हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। सभी को क्लियर होगा यहाँ से, बहुत आसान है। देखिएगा जैसे यू हैव ऑलरेडी टेकन योर फूड, देखिए तो हैव है और ये टेकन, यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू कैन सिंपली ऑब्जर्व। देखिए हैड भी यूज होना है, जैसे सी हैड डन हर वर्क बिफोर द टीचर आस्क्ड। देखो सी हैड डन हर वर्क बिफोर द टीचर आस्क्ड। अच्छा, ये प्रीवियस वीडियो जो मैं टेंस का समझा रहा था,
देन आई टोल्ड यू कि हैड का जब भी आप यूज करेंगे, जनरली जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें क्या होता है कि एक क्लास तो आपको पास्ट परफेक्ट में रखना होता है और अदर क्लास को पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे ये टीचर आस्क जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है और सी हैड डन हर वर्क ये आपका पास्ट परफेक्ट में। एंड हेयर द सी हैड डन हर वर्क बिफोर द टीचर आस्क सिंपली मीन्स है कि वह अपना काम टीचर के पूछने से पहले ही कर चुकी थी या उसने अपना काम टीचर के पूछने से पहले ही कर लिया था। और भी एग्जाम्पल से देख लीजिएगा, जैसे हु हैड entered the class before the teacher came। देखिए समझ सकते हैं यहाँ से हु हैड एंटर्ड, यूज ऑफ द हैड एंड वर्ब थर्ड फॉर्म है, और नेक्स्ट क्लास में टीचर केम यूज ऑफ द सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। अच्छा इसमें सॉरी मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो हु हैड एंटर्ड द क्लास बिफोर द टीचर के, आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे देखिएगा इसको मॉडल्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे माय मदर मे हैव गॉन टू टेम्पल। देखिए क्वाइट ओबीबीएस है, देखो मे मॉडल मैंने यूज कर रहा उसके साथ हैव लगाया। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को जब भी हैव यूज होना है तो थर्ड फॉर्म द वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल गॉन यूज हो गया। देखो अब हमने यूज कर लिया टू टेम्पल, तो माय मदर मे हैव गॉन टू टेम्पल। यहाँ मैं सर्टन नहीं हूँ, मैं आपको पता है कि एज ए मॉडल एक्सप्रेस करता है हमारी पॉसिबिलिटीज, हमें लगता है ऐसा हुआ है, तो माय मदर मे हैव गॉन टू टेम्पल कहने का मतलब है शायद मेरी माता जी मंदिर गई हुई हैं, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने देखा है कि वो घर पर नहीं है तो मुझे ये आइडिया है कि शायद वो इस वक्त मंदिर ही गई होंगी, तो इसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। आगे देख लीजिए आप, एक और एग्जांपल देखता हूँ, जिसे देखो यू मस्ट, देखिए फिर से मॉडल यूज कर रहा हूँ मस्ट, मैं हैव यूज कर रहा हूँ। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी। देखिए ये मैं सर्टेनिटी मेरा अजप्शन है, हम जब किसी बात को लेकर निश्चित हैं कि ऐसा तो हो या भाई गांधी जी का नाम इतना कॉमन है कि सभी ने सुना होगा, तो इसीलिए मैंने वो बोला है कि यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी। आप स्ट्रक्चर को मेनली समझिएगा, देखिए मॉडल यूज हुई है मस्ट, हैव यूज हुआ है और यूज ऑफ थर्ड फॉर्म है। तो गाइस ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्राइमरी वर्ब्स को और उनका यूज को, उनको एज अ मेन वर्ब कैसे यूज करना है मैंने बताया। इज एम आर और वॉज वर्ब जो उसके बी के फॉर्म्स हैं उनको एज अ मेन वर्ब आप लोग एग्जिस्टेंस या स्टेटस शो करने के लिए या बीइंग ऑफ समथिंग और समवंस के लिए आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट पे आपको डूडस बताया, उसको मेनली मैंने कहा कि आपको उसे एज अ मेन वर्ब यूज करना होता है, सॉरी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उसका यूज। मेन वर्ब होता है बस बहुत कम जगह पर होता है, जैसे वो जब उसका सेंस करने से जुड़ा होगा, जैसे आई डू समथिंग, मैं कुछ करता हूँ, तो यहाँ ही डू का एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। इन जनरल जो डू सेकेंड प्राइमरी वर्ब है उसका यूज जब भी आपको करना होगा तो आप उसे हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में ही करेंगे। फिर हम लोग आते हैं हैज़ और हैव। हैव पर, हैव के भी फॉर्म्स मैंने डिस्कस किया आपके साथ, हैज़ हैव है प्रेजेंट के, हैड पास्ट के फॉर्म है। मैंने ये भी डिस्कस किया कि उसको अदर मॉडल्स के साथ आपको कैसे यूज करना है, किसी भी मॉडल के साथ आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 एग्जांपल दिए आपको मे और मस्ट के, आप सारी मॉडल्स को भी देखें। मैं एक और एग्जांपल चलो वुड से और दे देता हूँ आपको,
जैसे आई वॉज सॉरी आई सॉरी वेट if you had worked hard you you would have passed। देखिए अनरियल कंडीशन शो करने के लिए आप यहाँ वुड हैव का यूज कर सकते हैं। देखिए वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास, अगर आपने बहुत मेहनत की होती तो आप पास हो गए होते। ये अनरियल कंडीशन है, यानी कि आपने ना तो किया और ना आप पास हुए। एक प्रेजेंटेशन है कि अगर आपने किया होता तो ऐसा हुआ होता, पर एक्चुअली हुआ क्या है, इसका उल्टा, आपने ना किया है ना हुआ है। लेकिन फिर भी हम एक अनरियल कंडीशन प्रेजेंट करने के लिए इस तरह से हम लोग वुड हैव का यूज़ कर सकते हैं। और इसको हैव को ना ही वुड हैव, मस्ट हैव या कैन हैव से ही नहीं, बाकी आप किसी भी मॉडल के साथ यूज़ कर सकते हैं। बस कंस्ट्रक्शन पर आपको ये ध्यान रखना है कि देयर मस्ट बी द यूज ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म। आप जब भी यूज करें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, या जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल ग्रामेटिकली कहते हैं। हाँ, थर्ड फॉर्म हम लोग जनरली बात करते हैं कि वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, लेकिन एक्चुअली ग्रामेटिकली जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म है और आपका जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आपका पास्ट पार्टिसिपल है, और जो आपकी वर्ब आईएनजी फॉर्म जिसे हम जनरल में बोलते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। गाइस, मुझे लगता है आप लोगों को ये थोड़ा समझने में, अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है और आप आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। और देयर इज़ नो नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स into Hindi as well. You can directly use any form of the words and can make sentences of yours and can simply express your ideas and have your conversation with the people in English as well. अगर आप इनको डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे तो आप लोगों के साथ अपने आइडियाज़ को बहुत आसानी से शेयर कर पाएंगे। और गाइज, मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आपको ठीक अच्छा लगता है, तो इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर विद दिस योर फ्रेंड्स दो विलिंग टू लर्न द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फील फ्री टू सब्सक्राइब माई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको इस तरह के वीडियोस आगे भी इंग्लिश लैंग्वेज पर बनाकर देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।